الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. میں شیطان مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ ایمان والے کہنے لگا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں. اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی تو محض تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کا ہے. جو برا کام کرے گا تو اسے اس برائی کے برابر سزا ملے گی اور جو اچھا کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت لیکن صاحب ایمان ہو تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. وہاں بے حساب رزق پائیں گے. اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تم لوگ مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں جو میرے علم میں نہیں. اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کسی کام کا نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف سے ہے. بے شک حد سے گزر جانے والے کی جہنمی ہے. وہ وقت قریب ہے جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے ضرور یاد کرو گے. اور میں اپنا کام اللہ کو سونپتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. سچ فرمایا اللہ نے جو وہ حسن والا ہے.
جزاک اللہ اس خوبصورت تلاوت کے لیے۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہمیں ان اقدار کی یاد دلاتے ہیں جو ہمیں جوڑ کر رکھتی ہیں اور اس بلند مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جو ہماری زندگیوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ And now I would request the Vice Principal SST, Sir Anisul Mustafa and Mrs. Sadia Aziz to present the cultural souvenir to our special guest of the evening, Air Commodore Sir Nayyar Qayyum Khaja, Mrs. Farzana Nayyar, and Air Marshal Tahir Ramzan. And now, Mrs. Iqbal Zanoli will present gifts to Mrs. Farzana Nayyar. نہیں وہ میں ایڈیٹنگ میں کر دوں گا سب کچھ۔ بیسیکلی ہم جہاں موجود ہیں سر اور میم کو فیئرویل پارٹی کا چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کے لیے، لیکن جس کی بھی ہم تھوڑا سا فارمیٹ چینج کرنے کے جو فارمل اسپیچز ہوتی ہیں وہ جو سامنے اسٹیپس بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے لوگ آتے ہیں یہاں کھڑے ہوئے اسپیچز کی کر کے مزہ نہیں ہوتا۔ جنرلی وہ الفاظ ہوتے ہیں جہاں ہم پورا دن سوچتے ہیں، لمبی سی اسپیچ بناتے ہیں شام میں تھوڑا فارمیٹ چینج کرنے کا رہتا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا کریں کہ لائف کیونکہ باقی ہے 11 سال کتنے اسپینڈ کی سر کے ساتھ میڈم کے ساتھ، کسی نے 10 سال، کسی نے 9 سال، کسی نے کہتے سے کچھ زیادہ ہے کام، لیکن وہ ٹائم ہر ایک کا اپنا ایک ایکسپیرینس اچھا بھی ہے، شاید کچھ دن سے ڈاٹا بھی ہوگا، کیونکہ وہ سر کے حوالے سے بات بڑی مشہور ہے کہ جوالا سونے کا اور نظر شیر کی 11 سال میں پرفیکٹ ذرا بھی ضرورت نہیں تھا۔ جہاں تک میم کے حوالے سے الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں ہم پریشان ہوتے ہیں تو ٹینشن ہوتی تھی کہ تو ایسے پریشان تو کس کے پاس جائیں، اسٹارٹنگ فرام فاؤنڈیشن ٹل دا وائس پرنسپل ہی واز اونلی ون کہ جہاں ہم کرے کرتے ملا کہ میم اب کیا کریں۔ سو اسٹارٹ اور سیشن فرام اسد خان صاحب، پھر اسد خان صاحب کو مائک دیں۔ سر آپ کو بورا کرتے ہیں، آپ کو کس اسٹیج پہ بٹھایا کہ جہاں ہم انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں ہائی اسکول کے اندر، اور جو سر نے جی ایس ایم کی تھی اپر اسکول کے اندر، وہاں سے لے کے وہاں تک سر کے ساتھ جو سفر ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ از ون آف دیم۔ کیونکہ when I joined the school, I was nothing. So, آج جو بھی ہوں سر کی وجہ سے۔ And whenever I achieve something in my life, I could see spark in his eyes. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے خوش ہوتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے جب بھی میں نے کوئی نیا کام کیا یا کوئی چیز سیکھی، I could see a spark in his eyes for me. وہ بوسٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ کیونکہ اگر میں آئی ٹی کی بات کروں تو 11 سال پہلے ہم سب کو پتا کہ ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس مقام پہ ہیں جہاں باہر سے لوگ آ کے ہم سے سیکھتے ہیں، ہمارے اسکول کو وزٹ کرتے ہیں اور ہم سے بہت چیزیں لرن کرتے ہیں، اینڈ
request us कि please आप हमारी help करें क्योंकि you are one of the best school in the region जो वो चीज़ें कर रहा है जो बाकी स्कूल अभी सोच भी नहीं रहे और ये सब कुछ सर का विजन था, सर की सपोर्ट थी और अगर ये सपोर्ट ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मुकाम तक आ सकते। तो ये वो मेंटोर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है इस मुकाम पे पहुँचाया है और मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम वन ऑफ द लकी ऑफ देम कि सर की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बाय इट्स लाइफ सो इंशाल्लाह मेरा कुछ रहे एंड कीप इन कॉन्टैक्ट और I will love you also sorry for that. लेकिन you will always in my mind like always. Thank you sir. जितना मेरे अंदर जितनी हिम्मत है मैं अपनी फुल कैपेसिटी में काम करूँ और मैंने सर को हमेशा हर जगह लेकिन हम लोग थक जाते थे काम कर करके सर को हमने कभी थका हुआ नहीं देखा। सर हम आपस में नाश्ते में कहते हैं कि ये सर खाते हैं मतलब हम लोग थक जाते हैं सर जो है माशाल्लाह इनके अंदर इतनी एनर्जी है तो शायद ये एनर्जी इसी वजह से है कि गॉड स्टीयरिंग है इनको अल्लाह का यानी एक हिसाब का डर होता है इंसान को कि यार ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैंने इसको पूरा करना है। तो शायद ये एक चीज़ सर के अंदर बहुत ज़्यादा है कि इनको पता है कि मुझे अपने काम का जवाब दे होना है, कल इन बच्चों का मेरा जवाब देना है। जो स्टाफ अगर काम कर रहे हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि ये क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो आपने क्या किया। तो शायद इस वजह से इन्होंने अपनी फुल एफर्ट जितनी भी इनसे हो सके थी इन्होंने वहाँ पे नहीं दी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैंने एक चीज़ देखी है मतलब बहुत कम मैंने देखा है कि ऐसे प्रिंसिपल जो फुल यानी डेडिकेशन हो जिसके अंदर माशाल्लाह सर के अंदर ही है। और खुसूसन मैं मैडम रोज़ाना का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं जब यहाँ पे आया 6.5 साल पहले तो मेरी वाइफ ने जब कुरान क्लास अटेंड यहाँ की तो उसको मतलब कुरान शरीफ पढ़ना भी सही तरीके से नहीं आता। यकीन करें कि अब तो यानी कि घर में अगर तिलावत हो रही हो तो साथ साथ तर्जुमा करके मुझे बता रही होती है कि इसका ये तर्जुमा है इसका ये तर्जुमा है। तो दिल से दुआ नहीं कर रही होती मैडम फरजाना के लिए कि एटलीस्ट मेरे घर में यानी एक ऐसा है कि जो कुरान का तर्जुमा पढ़ सके। बच्चों को भी बताती है कि ये कुरान ये तिलावत है और इसका ये तर्जुमा है तो बच्चों पे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट उसका आता है। तो माशाल्लाह आप दोनों की खिदमत जो है वो SST के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। सर मैं जो बात करना चाहूँगा बेसिकली वो तमाम फैकल्टी की तरफ से। वैसे तो आपके सामने मुझे बोलते हुए जो है घबराहट होती है जो कि कभी नहीं हुई स्टेज के ऊपर ऑडियंस को फेस करते हुए, लेकिन आपके 10 मीटर के दायरे में आने के बाद दिल की धड़कन वैसे ही तेज हो जाया करती थी हमारी। आपका ऑरा माशाल्लाह ऐसा था कि कभी खुल के हम बात नहीं कर पाए। आज मौका मिला है, शनी साहब ने कहा कि 1 मिनट की बात करनी है तो सबसे पहले मैं तमाम फैकल्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो इस बात पे कि आपने इस इलाके में सिंध के अंदर इस इदारे में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रोका जो कि निहायत ही मुश्किल काम है। और सर इस बात पे आप सबको क्लैप करनी चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए ही फायदेमंद चीज़ हुई। और दूसरा सर आपकी कीन ऑब्जर्वेशन यानी आप छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आज तक नहीं समझ पाया। बहुत कोशिश करता हूँ एज हाउस मास्टर कि सर जिस तरह कोई बच्चा आता है और कभी कभी हमें लगता था ये फजूल सी बात है सर जो कर रहे हैं और उसका जो एंड रिजल्ट में निकलता था वो देख के हम हैरान होते थे। कोई छोटी सी बात जो हमें फजूल लगती थी उसके पीछे रीज़न क्या था सर मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ आपसे कि आपने कभी अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। मेरा जो वक्त है आपके साथ वो 4 साल का था और इस कम अरसे में सर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने आपको आइडियलाइज़ किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। दूसरी तरफ मैम जो है मैम नहायत ही रहम दिल खातून हैं और जो है जिस तरह उन्होंने हमारी हेल्प की खास तौर पर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर और हमें जो है सिखाती थी, हमें उन्होंने ट्रेन किया इस
تو انشاءاللہ آگے بھی جا کے بچوں کے کام آئیں گی وہ چیزیں. اور سر تھینک یو سو مچ. باتیں بہت ہیں, ٹائم کم ہے. سر تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. تو پہلا دن لگا فرسٹ میں تھا یہاں پر انٹرویو کا, اور میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ یہ کیسا اسکول ہے جہاں پہ مزدوروں کے دن والی جو چھٹی کا دن ہے اس دن بھی چھٹی نہیں ہے. میرا ٹیسٹ, میرا ڈیمو فرسٹ مئی کو تھا, تو میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ وہ اس کے بیہائنڈ دا سین اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے کہ بھائی وہ کیسا اسکول ہے جہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی, صرف جون جولائی کی چھٹی ہمیں ملتی ہے, باقی ساری چھٹیاں ہماری بند ہوتی ہیں. زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ سر میرا تو اتنی لمبی جرنی نہیں ہے جتنی باقی سکتی ہے, بہت سا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا, لیکن جتنا بھی گزرا بہت اچھا گزرا. آپ نے بہت زیادہ مجھے موقع دیا. اس وقت شاید اسکول کا جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا آپ نے مجھے کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا. یہ بھی آپ کا ویژن ہے سر, آپ کی سپورٹ کی وجہ سے بس وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سر ایک اور ذمہ داری دی, ایچ بنایا. یہ سب آپ کا ویژن ہے جس کی وجہ سے بس جو ہے ہم سب اور یہ اسکول جو ہے وہ چل رہا ہے. تو سر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے گڈ بائی. الفاظ نہیں ہیں آپ کی تعریف کے لیے, باقی سب بہت کچھ کہہ چکے ہیں, میم کے لیے بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں. میم کے لیے جیسے انیس صاحب نے کہا کہ جب باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے تو بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب کہاں جائے, تو سب کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف میم کا ہے. تو میم آپ کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ وی ول ریئلی مس یو. تھینک یو. میرا بورڈنگ میں کام کرنے کا تقریباً ایکسپیرینس ہوتا ہے 15 سال کا. اس سے پہلے 6 سال لارنس کالج میں تھا جہاں پہ میں نے فاروق کے ساتھ کام کیا, اور یہاں پہ 2016 سے آ کر میں سر کے ساتھ کام کرتا رہا. وہ صحیح معنوں میں آرگنائز طریقے سے اور ٹائٹ شیڈیول کے اندر کمنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون کام کرنا جو ہے وہ میں نے ریئلی آئی لرن فرام ہیئر under your patronage. I feel always grateful for that. اور میم کا بھی بہت گہرا اثر ہے میری وائف کی بھی, کہ تربیت میں قرآن اللہ کا خاص طور پہ گھر میں جب ہم لاگو کرتے ہیں میں یا میرا بیٹا, تو اکثر ہماری ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے بولیں, تو ان کا بھی بہت گہرا امپیکٹ ہے. تو we will be always grateful for your services sir, and we wish you all the best in this life and hereafter. May Allah bless you both. Thank you. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. میں تھوڑا سا اسکول لائف سے ہٹ کے سر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. 2016 میں جب مجھے آفر ہوئی یہاں سے, تو میں اس وقت بیکن ہاؤس میں پڑھا رہا تھا. تو وہاں میرے ایک لیگ تھے, پتہ نہیں وہ کیسے سر کو جانتے تھے, انہوں نے آج تک مجھے نہیں بتایا. تو میں نے اپنا اپارٹمنٹ لیٹر میرے ساتھ شیئر کیا. وہ پڑھتے جا رہے تھے, 2 لائنیں پڑھی, پھر بولے یار حدیث میرے نا پنجابی میں وہ بات کرتے, میرے نا ٹنڈو جان جو رشتے دار رہتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک. پھر 2 لائنیں پڑھی, یار تم میری بھی گال کرنی چاہتی. پھر اگلی 2 لائنیں پڑھی, پھر کہتے یار پلیز سر یہ بھی اچھی ہے, تو ضرور جا کے میرے بارے میں مجھے دسی. اب اینڈ میں پہنچے گا تو پرنسپل یا کوموڈور اینڈ لیئر کی اوپر کہتے ادریس یہ پرنسپل ہے. میں کہا ہاں. اچھا اس وقت میں بھی سر کو نہیں جانتا تھا. تو کہتے یار میں ایسے ٹھیک. خورشید کا نام تھا. یار خورشید کیا ہوا؟ کہتے یار وہ نا میرے بچوں کے بھی اب بیکن اس نے داخلہ دے دیا ہے. اچھا میرے یہاں رشتے دار بھی ہیں, دوست, میں ٹھیک ہوں. چلو ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ایئر میں گیا یہاں سے چھٹیوں میں, پھر ملاقات ہوئی. تو پھر وہی میرے ٹنڈو جان میں رشتے دار رہتے ہیں, اور جو ہے نا وہ کیا ہے ساری وہاں صورتیات کیسی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا پرنسپل کون ہے؟ تو میں نے بتایا یار میں ٹھیک ہوں. اچھا اب پچھلے کوئی 8 سال سے ہماری ہر سال ملاقات ہوتی. وہ بندہ اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت تنگ تھا.
لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اوتھی ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ یہ تو لائٹر ہوتا ہے. سر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. فہیم صاحب نے جیسے بتایا ڈسپلن کمیٹی کے حوالے سے جب ہمارے سر سے ملاقات ہوتی تھی تو ایسے پوائنٹ جو ہمارے ذہن میں آئے ہی نہیں تھے کبھی وہ بھی سر کے پوائنٹ وہ ذہن میں آتے تھے. پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا جس میں بالکل ڈفرینٹ سینیریو تھا لیکن سر کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بچہ ان تینوں کیسز میں سامنے کیوں آ رہا ہے. اب وہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں نہیں تھا. تو بالکل ایک جیسے ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ جو ہوتی ہے سر کی ساری جو فائنڈنگس ہیں سر کا سارا جو وہ بہت ہی ڈیپ انالیسس ہوتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تینوں ممبر ڈسپلن کمیٹی کے. تو سب اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ ہو. جب آپ 2013 میں تشریف لائے تھے اس وقت میں ناچیر اس سال میں 2 سال کا تھا اس اسکول میں. 2011 میں آیا تھا اور 2013 میں آپ تشریف لائے تھے. آپ کے ساتھ جتنا عرصہ گزرا ہے ماشاءاللہ جو کچھ ہم نے آپ کے پاس سیکھا ہے وہ ہمارے لیے وہی سرمایہ ہے. خصوصاً میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے ہمیں کیس اسٹڈی بہت اچھے طریقے سے سکھائی. میں ہوں مستر ادریس صاحب ہیں اور مس صبا مبین صاحبہ جو ڈسپلن کمیٹی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. جب آپ تشریف لائے تھے آپ سے پہلے اسکول میں نے آبزرو کیا تھا کہ ڈسپلن کے بڑے مسائل تھے. 12 بجے 1 بجے تک بچے اسکول میں سو رہے ہوتے تھے لیکن اب الحمدللہ ہمیں سارا جو بچوں کے جتنے بھی بچے ہیں ہمیں اسکول میں ہی ملتے ہیں یعنی باہر کوئی نہیں ہوتا. وہی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. 11 سال میں وہ اب 1-2 منٹ میں نہیں سمیٹا جا سکتا. اور میڈم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میری بیگم صاحبہ سمیت میرے تمام بچوں کی آپ استاد ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. میری بیٹی ہوا بی بی انہوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ اپنے بہن بھائیوں کو قرآن پاک سکھاتی ہے دوسرے بچوں کو بھی وہ پڑھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ فیض جاری ساری فرمائے گا انشاءاللہ. آپ دونوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بہت ہی تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے تقریباً 1 سال لیکن بہت سارے پرنسپلس میں پہلے دیکھ چکا ہوں اور ان سے میرا واسطہ پڑا ہے. تو ان کے مقابلے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ ظاہری طور پہ بڑے سخت نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سختی آپ کی وہ قلب والی سختی نہیں ہے کہ بھی جو قلب کے اندر کی ہو یا نفرت ہو بلکہ وہ قلب کے اندر محبت پائی جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے پچھلے رمضان میں مغرب کا ٹائم بالکل یوں سمجھو کہ بس اب روزہ کھلنے والا ٹائم تھا اور کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے لیٹ تھے وہ آ رہے تھے. تو میں اس دن TOD بھی تھا تو میں نے بچوں کو زور زور سے آواز میں پکار رہا تھا کہ بھی جلدی آؤ تم لوگ باہر رہ جاؤ گے. تو سر نے مجھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا شیخ صاحب کیوں بلا رہے ہیں رہنے دے وہیں پر ان کو ایک دن نہیں کھائیں گے تو مریں گے نہیں لیکن وہ سیکھ لیں گے. تو مطلب یہ چیز اب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھی مطلب بچے ہیں پورا دن بھی نہیں کھایا پوری رات بھی نہیں کھائیں گے پھر پتہ نہیں کس طرح سے بیچارے پوری رات گزاریں گے. لیکن سر نے بڑی ایک اچھی بات میں بتائی کہ یہ جوان لوگ ہیں مطلب ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنا جلدی اثر نہیں کرتی لیکن آئندہ کے لیے یہ لوگ اچھی طرح سے سیکھیں گے. اور مجھے سر نے خاص طور پہ کہا شیخ صاحب دل پہ کبھی کبھی پتھر بھی رکھ لیا کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتھر رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ بچے سیکھ سکیں. تو سر تھوڑے سے وقفے میں تھوڑے سے عرصے میں الحمدللہ ہم نے آپ سے یہ چیز خاص طور پہ میں نے کیونکہ میرے اندر یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ وہ سختی والا پہلو جو ہے وہ میرا بالکل ہی یعنی کہ مزاج میں نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سختی بھی یقیناً کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کرنی پڑتی ہے تاکہ ڈسپلن جو ہے اس کو صحیح رکھا جائے. میم کے حوالے سے آخری ان دنوں میں جو ہم نے پچھلے دنوں میں لیکچر سنے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہمیں لگا اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں میرا سلسلہ جو وہ آگے چلتا ہے.
دعا ہے آپ دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے اور آباد رکھے، اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر السلام علیکم۔ سر میں آپ کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں درد کا۔ ویسے تو ہمارا آپ کا ساتھ ماشاء اللہ 8 سال رہا اور لکھنے دکھانے کا کام ہمیشہ رہا، اور میں اسپرٹ میں آپ کے لیے ہمیشہ پیغام بہت ڈفرینٹ لکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ جو آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کو اجاگر کے کرنے کی کوشش کرتا تھا میں، اور ابھی حالیہ آرٹیکل میں آپ کی شخصیت پہ تو بات ہو چکی ہے، میڈم کے لیے بھی میں لکھ چکا ہوں۔ آپ سے بس ایک تشنگی رہی، ہم چاہتے تھے کوئی کتاب مرتب ہو جائے، تو وہ سلسلہ نہیں ہو پایا، تو وہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور آپ کی شخصیت کے ہر پہلو سے ہم نے ایک چیز بڑی پکڑی، اور وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ تو ہم نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے کامیاب بھی رہے، اور آپ کی وجہ سے ہی، اور میڈم نے بھی ہمیشہ غائبانہ طور پر بھی ویسے بھی بہت ساتھ دیا، اور اخلاقی تعلیمات کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رہا۔ اور مجھے آج کے لیے شکوہ یہ ہے کہ اگر انیس صاحب مجھے بتا دیتے تو آج میں آپ پر ایک نظر پڑتا، یہ میری خواہش دل میں رہی، اس لیے میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جی کی جی میں ہی رہی، جی کی جی میں ہی رہی، بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ تو ویسے تو سلسلے ماشاءاللہ سے بہت اچھے رہے، تو سر آپ سے گزارش ہے، میں آپ کو لکھنا چاہتا ہوں کتاب، تو اس کا مٹیریل وغیرہ ضرور دیجیے، اور جہاں رہیے کانٹیکٹ میں رہیے۔ تو یہ سلسلہ سر پورا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسپرٹ ہمارا ایک اچھا پیغام ہے ہمارے اسکول کا، تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت آپ کے احساسات کا، احسانات کا، اللہ آپ کو گزارش ہے۔ السلام علیکم۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو سر کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا سر کے ساتھ بہت ہی تھوڑا سا وقت گزرا ہے، آلموسٹ کوئی 2 سال کے قریب ہونے والا ہے، لیکن سر اس اسنا میں اس دور کے اندر ہم نے آپ سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے فیوچر کے اندر بہت زیادہ کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں کو کس طریقے سے ہم لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ان کے لیے ہر طرح سے جو آپ نے چیزیں سکھائی ہیں سر، یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ میڈم نے بھی سر جو ہمیں پرانی آیات اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی سکھائی ہیں، تو وہ بھی سر ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین گائیڈنس ہیں، اور ہمارے لیے نہیں بلکہ سر ہماری فیملیز کے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی۔ تو سر میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مزید ترقی اور مزید بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سر آپ اپنے کو یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ پریویس 3 سال میں نے لاہور میں کام کیا تھا، وہاں پہ وہی ابھی تک رٹا سسٹم چل رہا ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل چینج ان ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک مینجمنٹ کا پراپر سسٹم دیکھنے کو مجھے ملا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آگے بھی یہی چلے گا۔ اینڈ تھینک یو فار آل آف دس۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ نمسکار۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ ویری انوویٹو، کہ کوئی سا بھی آئیڈیا ان کے سامنے فلوٹ کیا جائے، وہ اس کو 1 منٹ میں جج کر کے اور فوراً ہی وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انداز سے اس کو آگے لے کے چلتے تھے کہ وہ کامیابی کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی سر کی کوالٹی جو ہے، گڈ ایڈمنسٹریٹر، بہترین طریقے سے ہر ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، جو بھی وہ مینیج کرتے تھے۔ تو سر کے لیے دعائیں ہیں، میم کے لیے دعائیں ہیں، میرے بچے ان سے پڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر کے ساتھ میرا بہت کم ٹائم رہا ہے، تقریباً 1.5 سال کے عرصے، لیکن سر کو میں نے بڑا آنیسٹ پایا، پولائٹ پایا، وظائف تو سر بڑے سخت نظر آتے تھے، میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ سر کے سامنے کوئی بات کروں، لیکن میں نے سر کو جو آبزرو کیا، یہ دل کے بہت اچھے رہتے۔ اور سر ایک بات جو میں مین کے لیے کروں گا وہ یہ کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی اور بہت لگن تھی مجھے قرآن سیکھنے کی۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں قرآن سیکھوں، کسی کے پاس جاؤں، اس طریقے کی سیکھوں، تو اللہ نے میری دعا قبول کی اور میں
میں نے کہیں یہ سنا تھا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن سر کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ سر ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے، اور مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا کہ سر سے میں، کیونکہ مجھے 1 سال ہوا ہے، میں نے صرف یہاں پہ جو چیز سر سے سب سے زیادہ سیکھی وہ ہے اینگر مینجمنٹ، کہ غصے پہ کیسے قابو پائیں، اور دوسرا اس چیز کا افسوس ہے کہ سر آپ سے نہیں سیکھ پایا مجھے۔ اور میڈم کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہلے بھی میں نے ترجمے سے پڑھا تھا، لیکن جب میم کے لیکچر لیے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میم اور سر آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ سر آپ کے ساتھ میرا مور دین 2 ایئرز ابھی گزرے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں آ کے جو سب سے پہلی چیز وہ میرے ایک بات کا سب سے پہلی فیکٹ ہے، آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ڈانٹا، آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے آپ نے خود کو دیکھا ہوں کہ پریویس جو 2 سال پہلے جیسا تھا اور اب جیسا ہو، خود میں بہت زیادہ ڈفرینس پاتا ہوں، وہ بھی آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے۔ سب سے پہلے تو آپ کی ڈانٹ کا شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں آنے سے پہلے ہمارا جب ہم پریویس میں کام کرتا تھا تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ اس ٹائم فریم میں آپ یہ کام کریں تو ہم پہلے ہار مان لیتے ہیں کہ بس نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں آ کے جس طرح آپ ہمیں ٹرسٹ دیتے تھے اور ساتھ آپ ہمیں ٹاسک دیتے تھے کہ نہیں یہ کام آپ اس ٹائم ڈیوریشن میں اتنا کر سکتے ہیں، اور وہ واقعی میں ہو جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کو دیکھتے دیکھتے کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں کوئی ٹاسک تھا وہ واقعی میں کمپلیٹ ہو گیا تو امیزنگ تھی۔ سر اور دوسری چیز جو پہلے بھی باقی مینشن کر چکے ہیں کہ آپ کا جو وے آف انویسٹیگیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو فزکس مور دین 3 ڈائمینشنل ہے، 4 ڈائمینشنس میں جا کے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو سر ہر چیز کے لیے بہت شکریہ آپ سے، اس شارٹ ڈیوریشن میں ایٹ لیسٹ میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے جس میں سوچا چیزیں یہ ہے۔ تھینک یو۔ جب سب کے ساتھ کام کرنا شروع کرا تو ہر طرح کا ریلیشن شپ رہا سر کے ساتھ، اور بہت مزہ آیا کام کر کے، سب سے بہت ساری باتیں سیکھی۔ 1-2 باتیں ایسی یہ بھی سیکھی کہ کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سیکھا، اور سب نے مختلف باتیں کری سر کے بارے میں، ظاہر ساری صحیح ہے، میں ریپیٹ بھی کرنا چاہتا، لیکن ایک بات جو شاید میرے علاوہ یہاں پہ کوئی نہ کرے کہ 2015 میں جب میں آیا تھا اس کے بعد سے اسکول کے فائنینسز جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سر کی پرسنالٹی کا ایک اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے سر نے کس بعض کاموں میں جس طریقے سے سر نے مجھے گائیڈ کیا ہے اور جس طریقے سے ہوئے ہیں وہ کام، تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی سلسلہ بھی موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے گیا ہوں، میں سوچتا ہوا گیا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن سر نے مجھے زبردستی بھیجا اور وہ کام ہو گیا ہے۔ تو باقی میڈم اور سر یو ٹو میک اے گڈ کپل، اور وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سر۔ وہ مجھے کہا جاتا ہے کہ پرنسپل کا بیٹا ہے سر، یہ مطلب میرے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ میں سر میں یہاں بڑا 0 ایکسپیرینس کے ساتھ آیا تھا، اور 2014 میں جوائننگ کی تھی یہاں پر، تو سر کے سامنے جب میں گیا سر علی سے مجھے تو سر نے کہا یہ تو بہت چھوٹا ہے یار، یہ تو میرے سب سے چھوٹے بیٹے سے بھی بہت چھوٹا ہے، تو اس کو ایسے کرو یونیفارم لے کے دو اور اس کو کلاس میں ڈال۔ تو مجھے کچھ نہیں، مطلب پروفیشنلی کچھ نہیں آتا تھا، میں بس 2 دن مجھے ہوئے تھے، میں 10ویں پاس کر کے اور میں یہاں آیا تھا، اور میری یہ میری فرسٹ جاب ہے، اور میں نے 11 سال گزارے ہیں سر کے ساتھ، تو میرے لیے بہت مشکل ہے کسی چیز کو لیو کرنا۔ جو بات کئی بھائی نے کہی تھی کہ روحانیت والی بات ہے، تو آبویسلی اللہ کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہے سر۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے اوپر FIR تھی، اور میرا کچھ بھی نہیں جاتا تھا، لیکن مطلب میں سو نہیں پاتا تھا کہ یار یہ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔
सर एक दिन मुझे पता था, दूसरे दिन इतना इन्फ्लुएंस था बाहर से पॉलिटिकल कि हो सकता है मैं जेल हो गया। तो मैंने अली साहब से बात की कि मैं बाहर पैसे देकर या कुछ ऐसा करवाऊँ कि फैसला चेंज हो गया। मैंने कहा सर तो डांटेंगे, मैंने कहा डांट खा लेंगे लेकिन मैं जो है वो देख नहीं पाऊँगा। सर मुझे कहते हैं तेरा तो कुछ नहीं आता केस में, तो क्यों आता है कोर्ट में? मैंने कहा सर वहाँ दिल नहीं लगता। क्लासेस लेने के बाद मैं कोर्ट पहुँच जाता था क्योंकि सर सुबह से लेकर मांग कर रहे क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी होती थी। मुझे प्रोफेशनली ग्रूम करने वाले सारी मुझे जो कुछ भी आ जाता है, मैं क्लासेस अच्छा टीचर बना या मैं अच्छा मैनेजमेंट का हिस्सा बना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर। थैंक यू अल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर को मैं 2013 से गाना तौर पर जानता था और 2016 के बाद तो सर से मेरी मुशाफा मुलाकात हुई और वो तमाम खसाइल जो पहले इनके बारे में सुन रखे थे उनको अमलन होते मैंने देखा। और ये एक हकीकी बात है, ये सारे जानते हैं, दोस्त भाई सर सब जानते हैं कि एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीखी वो है डेट ऑनेस्ट होना, कि दयानतदार होना। और सच्ची बात है, मैं इस बात का मतलब कि हर दिन को तैयार कोई सर इस मामले में यकता है। और सर के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, ज़िंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। और सर के साथ गुजरा हर लम्हा वाक़ईअतन यादगार है। और मैम के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि मैम माँ जो है ना वो एक लफ्ज़ है और वो जो ये तमाम चीज़ों और तमाम बातों का खुलासा है। और माँ के लिए यही काफ़ी है, वो एक माँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। के सर ने मौका दिया मुझे एज ए टीचर काम करने का, क्योंकि जब मैं आया था तो बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस, मुझे क्लास पेपर में तरीका भी नहीं आ रहा था। मुझे याद आ रहा मीटिंग में सर ने साहब से कह रहे थे कि बच्चे को चलाओ चल जाएगा इंशाल्लाह। तो सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और देखने का मौका मिला कि सर की जो मैनेजमेंट है, सर का कंट्रोल है स्कूल के, और एक ऑफिस में बैठ कर पूरे स्कूल की सब कुछ पे नज़र रखना, सब कुछ मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, ये बहुत सर का इम्प्रेसिव है माशाल्लाह। और पैसा मिला के सर के लिए मैं थैंक यू मजा सर। अमीर जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, मुझे यहाँ पे तकरीबन 9 साल हो गए। और अगेन जैसा कि सर रमजान साहब ने फरमाया और सर बशार साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल नील जीरो एक्सपीरियंस के साथ आया था। मेरे पास डिग्री भी नहीं थी, मैं सिर्फ सीवी पे मैंने अप्लाई किया और तकरीबन उसके 2 महीनों के बाद मेरी डिग्री आई थी। और मैंने सर को ये बताया था, जब मैं डिग्री लेने जा रहा था तब भी मैंने सर को बताया था। तो सर कह रहे थे क्या करोगे डिग्री लेके, पढ़ा तो रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ हूँ मैं सर की वजह से। तो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज़ से दूर होता है तब उसका एहसास होता है। मैंने इस इदारे को छोड़ा, जब मैंने इस इदारे को छोड़ा तब मुझे पता चला कि इस इदारे की कदर क्या है, तब मुझे इस इदारे के वर्क के बारे में पता चला, क्योंकि मैं दूर हुआ। और वहाँ पे जब मुझे मुश्किल पेश आई, सबसे पहले मैंने सर को कॉल की और मैंने सर को कहा कि सर प्लीज़ मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? तो सर ने कहा कि बेटा कोई मसला नहीं, आप आ जाए। और ये चीज़ मुझे जो फील हुई, एक बाप की तरफ से शफकत हुई। तो हमेशा मैंने यहाँ पे जो भी वक्त गुजारा उसके अंदर सर के साथ मेरे इमोशनल मोमेंट्स भी गुजरे हैं। मैं सर के सामने बाकायदा हजारों साल हुआ हूँ सर के ऑफिस में, तो सर वो जानते हैं मुझे। और जब मैं सर के पास ऑफिस के अलावा घर गया तो वहाँ पे सर को मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट पाया। अगेन मैडम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मेरी वाइफ जो है हमेशा कहती है कि ऐसी शफीक और मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो मैं सर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा मेरी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। मुझे 1 साल हुआ है इस इदारे में काम करते हुए। राशिदाबाद से तकरीबन 20 साल हुए मुझे रिलेटेड मुख्तलिफ इदारे यहाँ पर बने हैं। और जैसे स्कूल मेरे सामने बना, ये जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रहे
खुश रखे और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह जो है सर की दुआएं हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक जो है सर की मेहनत को कबूल फरमाए। तो सच्ची बात है कि हम सर को सिर्फ अल्फाज के एतबार से दुआएं दे सकते हैं, लेकिन को बेहतरीन बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात के एतबार से अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सर की ख्वाहिशों को मेरी की ख्वाहिशों को कबूल फरमाए। शुक्रिया। नबी जनाब चीमा साहब। बस ये कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 9 सालों के अंदर सर के साथ एज अ होस्ट पर्सनली बस बताना चाहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई इस तरीके की जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों ही जॉब करते थे SST में, तो सर ने आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट और सर की आदत जो अच्छी लगती थी वो ये थी कि चाहे मौत मैयत हो किसी की शादी में हो सर ज़रूर शिरकत, चाहे वो कोई भी स्कूल का एम्प्लॉय है लेकिन पे वहाँ पर सारी सर की अच्छी हुई चीज़ें तमाम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे पर्सनली जो अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ की सर कैसे भी कंडीशन में हो कहीं भी हो, चाहे वो मेरा यहाँ पर एज अ स्वीपर हो कोई भी हो, और तो सर उसके अंदर ज़रूर शिरकत करते हैं। बाकी तो इधर बॉस तो सर के साथ कभी जाहिर बात है कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती थी सर से कह देते रिक्वेस्ट कर देते थे या हो जाता था। और मेन के लिहाज से ये कि मेन का रिलीजियसली जो इन्फ्लुएंस माशाअल्लाह फीमेल्स पे जो रहा वो बहुत ही मुझे आला और उसकी मिसाल है कि वाकई में एक मजहबी माहौल पैदा करने में यहाँ पर मेन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे लाजिम मैं पसंद से बहुत शुक्रिया मुनीर भट्ट साहब। अच्छा मुनीर भट्ट साहब के हवाले से एक बात आपको बता दूं, उमर सर के ज़माने में when Sir joined STP in 2013, he was the first one to be quiet foundation. इनको स्कूल में नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है जितना डिसाइड किया मुनीर को चले जाना चाहिए, इसकी यहाँ चलने की हिम्मत नहीं है। एंड एक ज़माने की जिसने अपनी मेहनत और सर की गाइडेंस का अपना नाम बनाया, और अब मुनीर जो जिद कहते हैं कि कोई टास्क दे दें या सुबह मुनीर चाहिए, रात को 3 बजे मैसेज आएगी सर मैंने पूरा कर दिया प्लान नीचे रखो मुझे बता दें। थैंक यू मुनीर सर प्लीज। मेरे ख्याल से तीसरे दिन ही अपनी लड़ाई हो गई सर जिससे कि नाराज हुए मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन के अंदर बंदा आऊँ मैं वही हूँ जो आज तक मौजूद हूँ। और सर मैं 2008 से अलहमदुलिल्लाह मुझे शर्फ है कि तमाम रिस्पत के साथ मैंने काम किया और मैनेजमेंट से आज तक। और पहले मैं बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था, फिर सर ने आज मुझे वो हुनर दे दिया कि आज मुझे नौकरी की परवाह नहीं कि कहीं भी 2 फीट की जगह लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक बिजनेस कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो ये सर की मेहरबानी है कि सर ने मुझे ऐसी फील्ड दे दी कि अब मुझे कोई परवाह नहीं। और हर वो काम सर ने दिया जिसका कभी मैंने देखा भी नहीं, कोई सोचा ही नहीं कभी कोई मशीनरी जैसे ये लेजर मशीन है तो वो माली वाला धक्का निकल अंदर लेके आते हैं उसमें एप्लीकेशन के अंदर ना, तो सर के साथ गया तो मैं सर की लेके आ गया कहना तो उसी बात तो मैं सब लगता आती थी कहना खैर खराब हो गई। सर ने जितनी सपोर्ट की तमाम मशीनें पहले के कोई चीज़ हमें बनानी होती थी हैदराबाद से जो आते थे एक हफ्ता हम मिस्त्रियों के पीछे ही घूमते रहते तो सर ने क्या लग जाए खुद ही है। तो उसके बाद कभी खराब हो गई कहना खराब तो हुई है ना सीख सर ने इतनी सपोर्ट की कि आज वो हैदराबाद वाले मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये पार्टी मुझसे जा रहा है तो किसी को मिलता है 8 या 9 साल हो गए कि हमने कभी कोई मिस्त्री अपनी मशीनों के लिए घूमा खुद अपना वो हर चीज़ में। फिर मैम ने मुझे एक वेब डिज़ाइनर बना दिया अलहमदुलिल्लाह, मैम जानते थे वेब बना के दे देता तो उस हिसाब से थैंक यू सो मच सर, विल बी मिस्ड सो मच इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू सर। And Assalamualaikum to yourself. I really can't
which he really deserves. And a lot has been said about you as well, madam, which you also deserve. You are really serving a noble cause for which I am praying to Allah that He may bless you all, both of you. I've learned a lot during my year and maybe a couple of months. I've learned a lot from Principal Sahab. And I was thinking that he would stay longer and you would learn more from him. But unfortunately, everybody has to go, a day has to come and one has to leave and say goodbye. As I already said, that a lot has already been said in this praise and have been rightly said. I do appreciate all that. And in the end, I remember that movie which you have seen, To Serve with Love, and I discussed it once. So I will again say, to serve with love. Wherever you are, wherever you stay, I feel we'll be missing you. Thank you, Brother. We'll miss you a lot. Thank you very much. सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस इदारे को ज्वाइन करने का मौका दिया, जहाँ पे न सिर्फ मैं बच्चों के कारकर्दगी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर ने न सिर्फ हमें अच्छे से गाइड किया, बल्कि इससे बढ़ के उनके थ्रू भी, अपने थ्रू भी हमें बहुत कुछ सिखाने की, समझाने की जो है ना ताकत अदा की, ताकि हम इनसे बहुत कुछ सीख सकें। जो भी मेरा जो है यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत कम रहा है, 1 साल अभी हुआ है, लेकिन मैडम से भी इन पर्सन इनके घर पे मैं मिल चुका हूँ, इनकी शफकत काइंडनेस से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैडम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैडम आपके यहाँ जो खाना खाया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I have spent 1.5 years here. सर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो आपने दिए हैं फेवर्स उन सबके लिए शुक्रिया। और सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू वालों से ज़्यादा आपको उर्दू आती है, इंग्लिश वालों से ज़्यादा इंग्लिश, ब्रिटिश वालों से ज़्यादा ब्रिटिश। और सर मैं वादा की जगह पे हैं, उन्होंने हमें कुरान पाक की तिलावत जो है वो सिखाई, तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू वजह सर। हमारा ऐसे साथ है कि ऐसा वेलकम सा अंदर बचा हुआ है कि अल्फाज में के कौन से ऐसे लफ्ज़, कौन से ऐसे महसूसात जिनको इज़हार ज़बान मैं दूँगी। तो स्टिल वही हालत है कि आखिरकार वो वक्त आ गया, मैं वो वक्त आ गया है कि हमें फॉर्मली चाहते ना चाहते हुए आप लोगों को बाय कहना पड़ रहा है। Both of you have been a great guiding star for us, an inspiration, and we will really miss you. जो वक्त गुजरा है उसमें जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने जो सीखा है, मैं सरकार से गई थी, फिर वापस भी आई, इससे पहले भी कई इदारों में काम करके आई। प्रोफेशनल लाइफ वो तो एक साइड है, इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने सीखी, क्योंकि मेरे अपने बच्चों ने भी यही तालीम हासिल की, तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप दोनों से मैंने सीखी कि बच्चों की तरबियत का जो असल अंदाज है, जो तौर तरीका है, यानी किस नुक्स से उनको सवार के, यानी कि उनको बेहतर से बेहतरीन या कम अज़ कम एक अच्छा मुसलमान और बेहतरीन शहरी की हैसियत से ज्ञानदार इंसान में कैसे तराशा जा सकता है, वो मैंने यहाँ सीखा। जो मेरा ख्याल है बहुत बड़े एहसास की बात भी और बहुत बड़ा सरमाया भी है। मैं कोई ज़्यादा अल्फाज मेरे पास नहीं है, आखिर मैं आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, आहम के जमाल में इंजील की दुआ, आहम के जमाल में इंजील की दुआ, नरमी में अपनी सूरह रहमान की तरह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम। सर और मैम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दोनों शख्सियात हम सब के लिए बिल्कुल वालिदैन की हैसियत रखते हैं। जिस तरीके से वालिदैन बच्चों की खैर ख्वाही चाहते हैं और सर का किरदार एक वालिद की तरह, जिस तरीके से हदीस ने अभी कहा कि खिलाना तो सोने का नवाला,
इब्तिदा शेर की। इस तरह के इन्वायरमेंट में हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ मीटिंग्स में जब भी सर को सुना बहुत कुछ सीखने को मिला। मसाइल पर, मुश्किलात पर घबराने के बजाय उनके सोल्यूशन की तरफ, उनके हल की तरफ कैसे जाया जाता है, ये हमने सर से सीखा। और जहाँ तक मैम की शख्सियत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मैम फरजाना जैसी अस्ताज़ा मिली, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा बहुत एक ये मकसद होता था कि मैं लफ्ज़ कुरान की तजवीज़ और लफ्ज़ को बहुत अच्छे से अदा कर सकूँ। और इसके लिए जब मैम आई तो मैं इस बात में भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुरुआत से ही मैम के साथ मेरा वाबस्तगी रही है और अभी तक वो सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और सीखने का अमल ये हमेशा ही इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। और मैम की मोहब्बत और शफ़क़त की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितनी भी फीमेल्स हैं, कोई भी मैटर हो, पर्सनली कुछ भी, जो भी मैम के साथ शेयर किया जाता है, मैम उसको ऐसे ही फील करती हैं जैसे एक मदर अपनी बेटी के लिए फील कर रही होती है। कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, उसके दर्द में बिल्कुल एक माँ की तरह शरीक होती हैं। 12 दफ़ा फ़ोन पे पूछती हैं तबीयत कैसी है, मेडिसिन ली, टेस्ट करवाए, बिल्कुल एक मदर जैसी फीलिंग्स आती हैं उनसे। हम सब फील हुए उसको। बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला मैम और सर को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और जिस तरह यहाँ की कम्युनिटी के लोग इनकी खिदमत से फैज़ हासिल कर रहे हैं, किया है, आइंदा जहाँ भी ये दोनों रहे हैं वहाँ के लोग इनसे इसी तरीके से फैज़ हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर और मैम, आप दोनों के लिए बहुत शुक्रिया। Sir, ma'am, I express my heartfelt gratitude to you for your vital impression in my life. मेरी सर और मैम से मुलाकात जो है वो दादी के घर पे, अभी ये लोग नहीं आए थे गायबाना, मुझे बताया कि SST के मैं राष्ट्रपति में एज अ गेस्ट स्पीकर आई हुई थी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ था। तो मुझे दादी ने बताया कि जो SST है उसके जो प्रिंसिपल हैं और उनकी जो वाइफ है वो मिलने आ गई क्योंकि सर मैम अक्सर उनसे मिलने चाहते थे। तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद में E9 में होती थी PF फिनिशिंग वालों के साथ, तो मुझे अंदाज़ा था कि अगर एयर कमांडर हैं और फिर वो प्रिंसिपल भी हैं तो ऑफकोर्स मतलब वो मॉडर्न होंगे, हेल्प करेंगे। और हम लोग बड़ा अपने तरह से प्रिपेयर हुए कि मैम और सर दादी से मिलने आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैम और सर को देखा तो इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे, इतना मैम को जो है वो पर्दे में देख मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद मुझे SST से सर ने गेस्ट स्पीकर सेशन ऑफर किया, मोटिवेशन गेस्ट स्पीकर सेशन के लिए मुझे यहाँ इन्वाइट किया। वो मेरा पहला सेशन था जब मैं यहाँ आई। तो मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस था, मैं पब्लिक स्पीकिंग करती थी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैं गेस्ट स्पीकिंग था और पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था मेरा। और जब मैं यहाँ आई तो जब मेरा मोटिवेशन गेस्ट स्पीकर सेशन हो गया और सर ने जो अल्फाज मेरे बारे में कहे, और लोग मैं पूरे पाकिस्तान में ये काम करके आई थी, लोग मेरे बारे में मुख्तलिफ राय देते थे, लेकिन जो सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि जो तुमने आज यहाँ सेशन दिया है इस तरह का सेशन कभी भी नहीं हुआ। तो वो सेशन ऐसा था कि जिसने मेरे अंदर मतलब ये चीज़ करती कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को नहीं कि ठीक है। हालांकि इस तरह का तो हमें कभी जहाँ से मैं सीख के आई उन्होंने भी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। नो डाउट कि सर की जो ट्रस्ट है हमारी एबिलिटीज़ पे, उसने हमें इस काबिल किया है कि जब हमें SST से जॉब की ऑफर हुई तो हमने फिर पूरे जो है वो अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसे डिपार्टमेंट में सर के साथ चलें जो सर का एक विजन था। और अल्हम्दुलिल्लाह के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में अनीस भैया, आसिफ भाई और मैंने जितना सर से सीखा है, आज हम जहाँ भी खड़े हैं और 2 साल की जितनी भी हमारी कामयाबी है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, वो सिर्फ सारी सर की वजह से है, क्योंकि उनका ट्रस्ट था हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर। तो आज हम इस काबिल हुए कि हम किसी के लिए कोई बेहतरी कर सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं। और जहाँ तक मैम की बात है, मैम मेरे लिए हमेशा मदद की तरह है और मैम के लिए मुझे कभी अपनी मदद की कमी महसूस नहीं हुई, ना आज ना फर्स्ट डे जब मैंने मिली थी मैं दादी के घर। और मैम का मुझे एक बात का भी रीज़न भी मैं मैम को बता रही थी, मैं किसी ट्रेनिंग सेशन में गई थी कराची और मैम ने मुझे यहाँ SST आने के बाद एक चीज़ की एडवाइस की, फिर मुझे बड़े अच्छे से समझाई थी
मैं इससे पहले हिजाब नहीं करती थी और नो डाउट मेरी जो हिजाब जर्नी है वो बहन की वजह से है। और मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे जितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हर कॉम्प्लीमेंट में इनके लिए दुआ करती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया है और इसके लिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी फ्रेंड भी हैं, ये मेरी मदर भी हैं, ये मेरी मेंटोर भी हैं। मैं सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनक्रेडिबल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एंड योर प्रेजेंस विल डेफिनेटली will be missed here. Thank you very much. About you, there is a woman behind all of it. So ma'am, this goes for you. You are the woman behind him, which has made him so great. My journey here, I didn't come as a young person, so mine is a very different experience. And my experience has been a roller coaster ride. And there were times I never wanted to stay here. And it's been nice and I enjoyed every bit of the ride. And I enjoyed your humor the most. And I'd like to thank you for the trust you placed in me. And I hope I've come up to the standard that you wanted progress to be. And not that you ever said that I've done a good job, but I think I have done a good job. So all the best to both of you. And the minute you step off the desk, I'm sure there's a whole new world of adventure open for you. Enjoy yourself. You deserve it. Thank you. सर, ये सब बातें सुनने के बाद में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जो ज़बानी हेल्प होती है वो नकारे खुदा होती है, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो आई गेस जो मैंने यहाँ सर को देखा, ऑब्जर्व किया, ये सारी जो गेम है वो इंटेंशंस की है। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, अगर आप पैशनेट होते हैं, सर को देख के जो समझ में आता है, सर को देख के मेरा इस चीज़ को बिलीव और स्ट्रेंथन हो गया है कि आपकी कोशिश कभी भी लाएगा नहीं जाता। अगर आप एक जर्नी में एक अच्छी इंटेंशन के साथ निकलते हैं तो आपको आपके जैसे लोग ज़रूर मिलते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। आई मस्ट से कि यू विल बी मिस्ड बट योर लेगेसी विल लिव ऑन थ्रू द टीम यू हैव बिल्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा बहुत कम वक्त गुजरा है सर के साथ, लेकिन मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने जिस तरह मुझे मतलब कलर्स को मैं हाथ लगाकर मैं डरती थी और जिस तरह इन्होंने मुझे कलर्स ने मुझे उससे करवाया शेड्स और सब कुछ, मैं समझती हूँ कि इससे पहले मुझे ऐसा कोई उस्ताद नहीं मिला। मैंने दोनों को ही बहुत ज़्यादा शफीक और मेहरबान पाया है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। Assalamu alaikum sir and ma'am. Obviously it's very hard to find right words to say goodbye to me, and I still remember his words that fly with their own wings. Those words work like magic, and I have learned that nothing is impossible. I usually appreciate the JSM, although उसमें time duration बहुत ज़्यादा हो जाती है, but the advices, the pictures, the quotes, the motivational videos you have shown to me. Sometimes I feel regret that you are expecting so many things from us and we are not giving our full efforts. कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से मैसेजेस आपके पास भिजवाते हैं जब आप कभी परेशान होते हैं। I still remember I was stuck in my GSM in something, and sir advises us that if you have taken any decision, so just stay on it, no matter whatever obstacle is. So sir के inspiring word, motivational word हमेशा याद रहेंगे, and I'll pursue it, carry it. For men, I'm very unfortunate that I couldn't attend your classes because of my younger kids, and you know that I'm a single parent here. But in 2 or 3 classes, I realized that my professional qualifications and my skill and experience couldn't justify me in front of Allah. And for that, now I am working on my tajweed as well at home. And both of you, the way you treated us with love, care, like spiritual
spiritual parents that has been found to remind us that we, being a teacher, should also nurture our students' future as well. So I'm very grateful for it. Thank you so much, both of you. Thank you very much. पर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत गाइड किया है हर तरह से हर मामले में। और आप जहाँ मैंने अपने शहर में तलाक को उस शहर से दूसरी वाली लंबी जिंदगी दी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि 2 साल में जो मैंने आप दोनों से सीखा, किसी दिन मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूँ अपने इमोशंस। एक दिन ऐसा आएगा, मैं नहीं जानती, जब अल्फाज बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मैं अनएक्सपीरियंस थी, मेरे पास नॉलेज थी, एक्सपीरियंस नहीं था। और सर ने जिस तरह से इंटरव्यू में जब मैं बैठी थी तो मैं ये जानती थी कि मैं बच्चों को दीन सिखाने आई हूँ। इंटरव्यू के बाद जब मैं स्कूल से वापस जा रही थी तो मेरे पास एक आइडिया था कि मैंने करना क्या है और किस तरह सिखाना है। उस एक इंटरव्यू ने मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ पर असर किया है और आगे भी करेगा। मैम ने जिस तरह मुझे सिखाया, शायद ही कोई सिखाया कि क्लास में ले जाकर मुझे बताया कि आपने ये करना है, उस तरह करना है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी, आप गाँव में रहते हैं और आप गाँव में रहेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम लोग गाँव में याद रखिएगा। बरीरा ने इतना कुछ इमोशनल मुझे कर दिया था, मैं जो बोलना चाह रही थी मैं वो भी भूल चुकी हूँ। So I would say one thing, that when I came here for the very first day, I got to know that it is a school where there is a principal madam as well, and who used to teach Holy Quran to employees, and I was really very impressed and surprised कि ऐसा कोई school नहीं होता। And secondly, when I met the sir, or even first time when I met the sir, मुझे लगा ही बिल्कुल भी कि मैं सर से पहली बार मिल रही हूँ, और मुझे बस क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि सर साइकोलॉजिस्ट हैं और मुझे वो जानना है कि वो है या नहीं है। और एट द एंड आई वांट टू नो, मैंने पूछ लिया सर से। तो सर के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, सरप्राइजिंग था, बिकॉज आई वांट टू नो एंड इवन आई हैव लर्न फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ सर दैट सर इज अ लीडर बाय एक्सीलेंस हू कैन रीड द हिडन पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज, एंड सर हैज अ पावर, there is an energy to make anyone to reach his highest potential, and that is the amazing thing. So that's all about sir and ma'am, and even I have no more words about ma'am क्योंकि उनके साथ तो बहुत ही closest heartiest relationship है, और इतना ज़्यादा मिस करेंगे that we can't tell, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, आपकी presence को every time, every single moment. And every second we spent with is just like a feeling which I haven't expected from like mentors like you. So goodbyes are always hard, especially when I met you. I got you. Thank you. You helped me in growing both personally and professionally, ma'am. Your spiritual insight deepened my connection with Allah Almighty. I know parting ways is not an easy thing, but knowing the profound impact you have had on my life will make it little easier. I just want to let you know that you both will be remembered with an immense gratitude and affection. Thank you so much. God bless. Thank you very much. मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ, जो प्रिंसिपल साहब वादा तस्लीम करते हो तो उसी आपका तो मैं बैठा है। मेरा अच्छा जो गुजरा है, प्रिंसिपल साहब को पहले दिन मैंने रिसीव किया, मेरा और काफ़ी चीज़ों में कमी थी जो उससे मैंने सीखी भी, वो काफ़ी रहनुमाई भी थी। सबसे बड़ा उनका खलूस मुझे लेके चुका रहा, मुझे यहाँ मुझे सर्विस करते हुए 2-3 बड़ी शदीद किस्म की बीमारियाँ पैदा हुई। फिर मैं कैंसर था, तो मेरे कैंसर की वजह से मेरा खानदान डिस्टर्ब हो गया था, तो मेरे बेटे ने एवी से रिजाइन भी दे दिया था, तो वो मुझे यहाँ छोड़ के आया। तो मैंने उनसे मुलाकात की, प्रिंसिपल साहब ने मुझे डॉक्टर बता के
मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई, वो हौसला मेरे काम आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ब्रेसलेट फट गए थे कोरोना के पहले, तो मैडम शफा मुझे देख रही थी प्रिंसिपल साहब के साथ, मैं उनका बड़ा परेशान हूँ। मैडम ने जब मुझे देखा मेरी स्कूल पास हुई थी, देखा तो एकदम उन्होंने कहा पास भाई ये क्या हो गया। उनकी दुआओं से मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे होती थी कि मैडम आप दुआ करें तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो जब प्रिंसिपल साहब आए थे तो उस वक्त प्रोफेसर साहब थे यहाँ पे ग्रुप कैप्टन यूनिवर्सिटी, तो मुझे कहने लगे इकबाल नौकरी का तुम्हें पता है कि क्या पता, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े काम के आदमी हैं। तो मैंने जो जब वो आए प्रिंसिपल साहब के सामने मिनट कराने गया तो प्रिंसिपल साहब की स्पीड इतनी थी कि मैं भाग भी नहीं पहुँच सकता। प्रिंसिपल साहब कर रहे मैंने कहा यार मैं पूरा पता कहाँ रख गया, मैं भाग के पहुँच जाऊँ। प्रिंसिपल साहब मेरी स्पीड में लगी, समझ नहीं आती या भी परेड बोल चुका हूँ या नहीं। तो मेरा वक्त जो गुजरा उसमें सबसे बड़ी चीज़ें जो यहाँ आई हैं ये सब ने ढूंढे हुए, पता नहीं यहाँ पे आज लेबर से लेके टीचरों तक ये मुफ्त आजाद जो होना ये पहले नहीं था। और फिर उसके बाद आज बोनस ले के बैठे हुए बता रहे हैं, ये चीज़ें नहीं पता यहाँ नहीं होती थी। यहाँ पे बच्चों के लिए दूध की फैसिलिटी जो है वो इंजेक्शन मिला और दूध पीते थे, आज माशाल्लाह वो दूध हो गई। सारे काम उन्होंने जैसे मुझे कहा, मुझे हौसला अफजाई की तो मैं अपने बढ़ के काम किया। और आज जितना अमला काम कर रहा है कि सारा अमला इसी बात पर खुशी है कि आज उनके बच्चों को तकलीफ होगी। एक मेरे पास बता था उसके डिलीवरी केस था उसकी, तो उसने 40,000 रुपये मांगा, उसके पास 40 रुपये नहीं थे, तो कलेक्शन करके रिक्वेस्ट करके प्रिंसिपल साहब ने करके उसको किए, आज वो जाके इलाज करा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ा कारनामा उनका ये था कि आज किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हो। तो उसके अलावा मेरी बेटियाँ यहाँ थी, मैडम से उन्होंने कुरान मजीद की, आज भी एक दुबई बैठी है, एक आनंद बैठी है, एक इधर, तो वो उनसे रहा है, मैं उनसे रहा होता फटा था, मैं उनसे रहा है। वो अल्लाह ताला मैं तो ये दुआ करूँगा, मैं मेरे लिए दुआ करेगा, वो सेहत दे और मैं उनकी दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खुशियाँ दे, वो किसी किस्म का मसाइल है। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी ये दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह मेरी मिशन की दुआएं, जब भी मुझे दुख आया तकलीफ आई तो मुझे मैडम का हौसला जो है बहुत कामयाब किया। और मैं यहाँ तक बोल गया था कि मेरा ड्राइवर ही आ गया था यहाँ पे सर्विस से, उन्होंने कहा मैंने कहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, और अल्लाह ने ठीक किया, हौसला दिया। आज बीमारियों के अंदर मुबतला हो गई तो आज 17 साल दर्दा लगा के मैं इस अदारे को भी आवाज़ रखे और सबको खुशियाँ दे और हर आदमी को इतनी हिम्मत दे कि मेरी तरह वो कोई छोटे छोटे काम करे। तो मैं जो भी काम करता था सोचता मुझे कहते आराम भी कर लिया करते, तो मुझे आप काम दे देते हैं आराम से भी कहते दो काम करेंगे, तो मैंने करना पड़े, मुझे आराम करके आते। एक जानवर बीमार होता था, मैं परेशान होता था, मुझे कहते था मैं छोड़ा क्यों परेशान होता। इनकी सबसे बड़ी जो बात थी, जो भी फैसला जो को परेशानी आती थी किसी स्टाफ की किसी को कहते अल्लाह में छोड़ो अल्लाह बेहतर। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी चलाया। दिन जिंदगी है, कितने साल है मैं, लेकिन मैं आपको याद रखूँगा। और यही बात होती है कि सब बिना अल्लाह ताला आपको दिन पर इसी तरह कायम रखे। जैसे कि मैंने 10 बजे भी पूछा कि सर एंटर हो गए, तो मैंने कहा मस्जिद में आएंगे कैसे, फिर गार्ड को बताया कि जरा सफर करें। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह भी जाके देखा तो गाड़ी खड़ी मुझसे पहले, और इस तरह मैडम इस तरह करती, और वो तमाम डिसीजन पावर है जिसकी वजह से मैंने काम किए। अगर 21 लाख का बिल आया तो उसमें चंद मिनट गुजरे वो हो गया, ग्रिड में काम हो गया। लेकिन बिल पूछा 21 लाख है, इकबाल को बुलाओ, फहीम को बुलाओ, चेक बनाओ, चेक दे दो और बाद में चले जाए। ये कितने बिल है? ये 8 लाख का है, 8 लाख पैसे दे दो। तो मेरे ख्याल में कितने भी बिल थे जितने कि उससे कोई हर्ज नहीं हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव का हुआ कि आप कमिश्नर को बुलाएं, वो हैदराबाद के कमिश्नर को बुलाएं,
और वो फिर ये नहीं कहा कि ये मैंने बोला, शबीर साहब की भी बता कि अमीर ने बोला। और ये भी है जो ग्रिड में काम कर दिया तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी रैंक कर दिया कि ये इसमें मेरा कोई काम नहीं है, ये अमीर ने कर दिया। और वो फिर उसके पास मेरे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव के पास से दरबार भी चले गए। वो ये भी अच्छी बात है कि हम टंडू जाम पहुँच गए तो उसने वहाँ से रैंक कर दिया कि मैं दफ्तर में आ गया। तो ये है जितने भी काम थे तो ये इनकी करेज की वजह से हो। आपने जितने भी बिल थे वो तमाम इन टाइम जमा कर दिए, उसमें कोई देर नहीं हुई। तो डिसीजन पावर का और ये जो मैडम ने लोगों के जितने भी काम हो जाते थे तो शाबाश थे, मैं हौसला करता। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे गाइड किया। और ये एक बात होती है कि एक खानदान जो जाता है और इसकी कमी महसूस होती है, ये एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी तकरीर कर ले तो इसी तरह है, आपकी कमी महसूस होगी। आपने इतने काम किए कि आपकी कमी महसूस होगी और अल्लाह ताला हमें हौसला दे कि हम इस काम को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दिलगान मुझे इसका असर नहीं आना चाहिए था, मगर सर के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। मतलब इस जगह जो बैठे हुए हैं, वहाँ भी तो ऑब्वियसली इनकी शादी मेरी सबको जाने से बहुत पहले हुई थी, बट उसके बाद मैं इनको जानता हूँ सिंस अबाउट 1990। तो इतना ताल्लुक है। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है जो मॉन्टेसरी में था, तो भाभी ने उसको सर्टिफिकेट दिया था। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद टीचर्स। आप लोग बोल रहे थे मैं साथ साथ लिखना शुरू हो गया, मैंने कहा मैं पॉइंट लिखता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। लेट मी गो। आपने सर के काबुल के मिशन को सुना था, जो सर ने काबुल का मिशन किया था? नहीं सुना। क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं तो जहाँ की एक्सपीरियंस हैं, यहाँ की चीज़ें हैं जो आप लोग बता रहे हैं। सर इज नॉट लिमिटेड टू दिस स्कूल, ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर वी केम, एंड इंशाल्लाह ही विल डू लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टरवर्ड्स। सर ने काबुल का मिशन किया था, वो तकरीबन हर साल अखबारों में सीजन बनता है, वो खबर जो होती है कभी ढूंढिएगा, कोशिश करें आपको मिल जाएगी उसकी तस्वीर भी। और उसमें एक जवान से सर ने ये लिखवा जाना नजर आएगी तस्वीर में, जो कि जख्मियों को और डेड बॉडीज को लेकर सर काबुल से लेकर कारगिल के मिशन में सर ने मैंने इकट्ठे में फ्लाई किया लॉजिस्टिक्स के मिशन, और बहुत मुश्किल मिशन थी, जो सीनियर मिशन थे वो हमने फ्लाई किए हैं। और इसलिए किए थे फ्लाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जूनियर इनएक्सपीरियंस करके वहाँ पे जाए, बिकॉज हमें मालूम था कि वो मिशन इतना खतरनाक है कि हम नॉर्दर्न एरिया में बारिश में पहाड़ों के अंदर हम जहाज उड़ाते थे। सर ऐसे उसके बाद अच्छा सर ये भी काम करते हैं, वैसे आप शो देखा हमारी जो यूनिट थी 6 फॉर्म से कहते हैं, उसके बाहर कंक्रीट, थिक कंक्रीट, यानी 4-5 फुट से ज़्यादा होगी ऐसे कंक्रीट था। हम लोग पास कोई खास कोई ऐसी चीज नहीं, ये ठीक सा बता था उनके शरीर के बाहर कंक्रीट है। सर ने कहा यहाँ घास को बनिए, जो भी कहते थे लोग यार मेरे साथ कर लो, मेरे साथ यहाँ बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लीक हो गई। वो इतने सालों के बाद घास मौजूद है और अब वहाँ पे लोगों ने पौधे भी लगाए। इट्स बिकम ए ब्यूटीफुल टाउन, जो इस सब आगे देखते हुए हैरान होते हैं यार ये कंक्रीट पे कैसे लोग तैयार होते हैं।
B31 में जो पौधे सर के ज़माने में लगाए जाते थे हमने उसका फल लगाया नहीं अब हाँ यहाँ पर वहाँ पे लोगों ने बात करने का हम एक दिन मस्जिद से निकल रहे थे मौलवी की नमाज के बाद तो उस दिन वैसे निकला तो किसी ने बताया नेशनल इवेंट काफी बड़ा हुआ था निजर करने राजा दफ्तर पहुंचा मसला हो गया वहीं से मस्जिद से मैं वहां गया था मुझे पता था मसला चलेगा जहाँ इन्होंने यहाँ भी बहुत सारी चीजें की बाकी जगहों भी करते रहते हैं जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल कुर्बानी का इंतजाम किया था और जब मैं उसी पॉइंट पे केस के बाद जब गया तो मैंने उसी को फॉलो करवाया था कि कोई बच्चा देखा तो जारी रहना चाहिए मानवता का उसका में से किसी को पता है नाम सुना सर से कभी सुना से सुना नहीं सुना जी आपका घर से साथ आपका घर से साथ जी एक घर छोड़ के उसके बाद आपका लेना और वहाँ जो रेस्क्यू जो कुछ हुआ था जो कुछ सर ने किया था क्या कुछ नहीं किया प्रॉपर्टी सर ने कभी अफसर से कभी नहीं किया बिकॉज ये जीवन बोलना नॉट टेल यू क्या कुछ करते रहेंगे और क्या कैसे काम तो ऐसे तो ये करेक्ट अच्छा लोगों ने तो मुझे दूसरी बात आगे मैंने जैसे उस जमाने में सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट्स थे देखने के मुझे तो थ्रेट वाला वार्निंग आया हुआ था कि आपको अंदर से मारेंगे ऐसे गोली चलेगी वगैरह हमने लोगों को काफी कोशिश करते बेटे कर सारे हमारे बात देने के लिए इधर आ जाओ तो एक चीज देखो तो मैं ऑफिस से बाहर निकला मेरे साथ गाड़ी की इन्होंने अपनी गाड़ी की ये खोली ठीक है कहते हैं जो रजाई पड़ी इसको लगा मैंने रजाई लाई उसके नीचे गन पड़ी कहते हैं जब नई गन लेके यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ तक कोई भी आ सकता है you need to do training and security so there's a lot of things that I can say unfortunately I cannot say it like it is आप लोग भी जब सर से बात करते होंगे करते तो रहता हूँ सुनते होंगे सर की बात तो इनिशियली आपको 10 पीसेस समझ आती होगी बाकी ऊपर से गुजर जाती होगी आहिस्ता आहिस्ता वो 30 तक आ गई होगी जो बहुत पुराने हैं शायद 50% तो समझ जाती होगी मैंने फिर सीरियस समझ लिया तो I'm not happy with you. With that, thank you very much. Over to you. Thank you.
our principal Dr. Nayyar Khushru Khwaja and Mrs. Farzana Nayyar, as a keepsake of the many years they have devoted to the school. छोटे बच्चे हैं फ्रंट पे बैठे हैं बाकी साइड पे खड़े होते हैं हाँ तो सर चलिए हम चलिए पगार में खड़े करें पीछे खाली छोड़ो के साइड पे तौर देंगे सब तो एक साल 2 साल 3 साल की पोस्टिंग में होता ये था कि एक अटैचमेंट हो जाती है उस जगह से इर्द के माहौल से अपने लोगों के कुछ में तो होता है ना कि आप फैमिली से बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं तो दिन रात बहुत बड़ा बैठना होता है दोस्ती होती है स्पेशल बेसिस पे तो वो तो 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम हुआ करता था तो उसमें मुझे बहुत फील हुआ करता था कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ हालांकि पता होता था कि नेक्स्ट जब जहाँ जाऊँगी वहाँ भी ऐसा ही मुझे मिलेगा फिर भी वो एक अटैचमेंट हो जाती है मैं शायद मुझे ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इसलिए तो अभी मैं कभी सोचती हूँ कि यहाँ तो हर टाइम अब आप मुझे पिछले 3-4 साल से प्रॉपर्टी हम कोशिश कर रहे थे जाने और यहाँ तक जब कहते थे हम जा रहे हैं तो मैं 1-2 डेट्स प्लान कर लेती थी कि पता नहीं जा रहे हैं मेरे गाइड से प्लान कर रहे थे तब अभी जब मुझे चला मुझे सोचा तो आ गया तो मुझे जाना है मैं इसे घर कर नहीं आपको मुझे जाना है मैंने मुझे पक्का बनाया ये लोग कहते हैं कि हम मुझे नहीं जाना तो कहते नहीं जैसे बात बारह मैंने उसको विजिट कर दिया और मैं ट्रैकिंग में लगी रही थोड़ा मोबाइल के बाद नहीं रखा और मैं सोचती भी नहीं थी कि मैं जा रही हूँ मतलब खुद फील नहीं होती थी तो कैसे मैंने कहा जा रही थी हालांकि वापस जाने के लिए डिसाइड बहुत
हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों छोड़ के आए थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अब माशाल्लाह जवान हो गई। उसके दौरान मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे ये कह रही थी कि अम्मी आप छोटे छोटे थे, आप छोटे थे, अब हम बड़े हो गए और आपने हमने वो टाइम नहीं दिया जो हमने आपके साथ गुजारना, हमने आपसे बहुत कुछ सीखना था। तो फिर मैंने इसको नजर ली कि बेटा जल्दी आ जाएंगे। बाहर तो एक फैक्ट है, जाना तो होता ही है, मगर सिर्फ इतना था कि यहाँ इतना टाइम गुजारने के बाद कोई डिफरेंट किस्म की एसोसिएशन इस जगह से हो गई और फिर आप सबकी मोहब्बत, आपका प्यार, मैंने जो भी किया मुझे नहीं पता मैं कैसा बिहेव करती हूँ, कैसा नहीं करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे आप सबसे मिला, स्पेशली मेरी बेटियाँ मैं कहती हूँ, इनको मैं अपने बेटे कहती हूँ कि जब मैं इनको पढ़ाने जाती हूँ तो हमेशा यही कहती हूँ माँ की तरह आप छोटे छोटे बहुत छोटे, मेरे छोटे बच्चे से भी छोटे टीचर्स, तो मुझे वैसे एक नहीं होती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं कराए और मेरी हमेशा ये डिज़ायर रही कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ और जिनको पढ़ाऊँ, जिनको सिखाऊँ, उनको हमेशा मैं अल्लाह से जोड़ूँ, क्योंकि दुनिया बहुत थोड़ी है ना, छोटी सी है। तो यहाँ हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही थोड़े अरसे के लिए कर रहे हैं, तो थोड़े अरसे के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, तो असल फ़ायदा उठाने की चीज़ है वो आखिरत है। तो मेरी बहुत डिज़ायर होती थी है और इंशाल्लाह मेरे मरने तक रहेगी कि मैं जहाँ तक हो सके मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ती हूँ, यही अल्लाह का हुक्म है और मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आप सबके साथ जो मेरा टाइम बहुत ज़बरदस्त है, तो इस तरह से आप लोगों से मुझे प्यार भी सब ज़्यादा हो गया और अभी आप लोग इतनी इमोशनल बातें कर रहे थे और मेरे साथ साथ आंसू आ रहे थे, उनको रोक नहीं थी और मुझे डर था कि मैं बोलूँगी तो मेरी रोना शुरू कर दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हौसला दे देता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और आपकी कंपनी जिसको मैंने एंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना टाइम याद गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, मैं आप सबको हमेशा याद रखूँगी और आप सबको मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा से बहुत ज़्यादा रिएक्शन रहा है क्लासेस की वजह से और स्पेशली मैं सादिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सादिया ने मेरा हर कदम ये डेढ़ बंद से दिन से मैंने यहाँ क्लास शुरू की थी, ऐसे 11 साल पहले, इसने कभी छुट्टी नहीं की क्लास से, बीमार होने के बावजूद छुट्टी नहीं की और मेरे ग्रुप को, मेरा जो कुरान का ग्रुप है वो हमेशा यही हैंडल करती है। मैंने जो मैसेज देना होता था मैं सिर्फ छात्रों को कॉल करती थी तभी ये मैसेज दे दूँगी और ये हमेशा अपनी अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर में आपको और जिस मेहनत और लगन से आपने सीखा और अभी जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपने से कितनी खुश होती हूँ, तो आपको अंदाज़ा नहीं है जब आप खुद उसकी ट्रांसलेशन कर रही होती हैं तो एक मुझे खुद प्राउड फील होता है। उस बात को जब मुझे पता चलता है उसके स्टूडेंट्स ने जिस तरह से सीखा, जिस तरह वो सिखाना चाहता है, तो उसको अंदर से कितनी खुशी होती है, आपके साथ पैसा होगा इस चीज़ का। और आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं मैंने की आपके साथ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको ठीक किया जो मैंने आपको सिखाया और मुझे फील हुआ कि आप इसमें बहुत बच्चों ने आपके बच्चों का क्या हुआ मुझे आप इसमें बहुत बच्चों ने बड़ा अच्छा किया और मुझे फील हुआ कि आप करें जो कुरान की आयात जो चीज़ मैंने आपको सिखानी थी। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्या कुरान का तर्जुमा सिखाना नहीं था, आपको पता चला होगा उसमें से जो लेसन्स मैं आपको आपकी ज़िंदगी में देना चाहती थी वो मुझे कुछ नज़र नहीं आया और क्योंकि टाइम थोड़ा मिला नहीं आपको, तो मैं नहीं समझती कि सबके ऊपर इफेक्ट हुआ होगा जिस तरह आप कर रही हो, लेकिन जितनी हुआ मुझे अच्छा लगा, काश मैं आपको और सिखा सकती तो आप ज़िंदगी के बहुत कुछ सीख लेते जो हमसे अल्लाह मांगते हैं, जो रिक्वायर्ड है हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि 3 बार में काम किया करें और 2-3 चीज़ें मैं बहुत आपके लिए बोलती हूँ क्लास में और आपको भी कहा और पाने की और आपको कहना चाहती हूँ
हम सब जब एक जगह इकट्ठे एक कम्युनिटी में बिल्कुल साथ साथ रह के काम कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। हम पहले इस चीज़ को समझे नहीं, हम दूसरों से बहुत सीखते हैं। तो मेरी आपसे हमेशा की दरख्वास्त रही है कि जब हम एक जगह पे एक फैमिली की तरह रहते हैं तो हमें बिहेव भी एक फैमिली की तरह ही करना चाहिए। आपस में छोटी छोटी नाराज़गियाँ, रंजिशें, छोटी छोटी इख्तलाफात जो हैं वो तो सगे बहन भाइयों में और माँ बाप और बच्चों में भी हो जाते हैं, होते हैं ना, होते हैं। तो इसलिए हम सब जब एक जगह रहते हैं तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। मैंने आपको शायद देखा वो बर्ड्स की जो फ्लाइट थी उससे साथ की थी, अल्लाह ने कुदरत में हमारे लिए उनकी निशानियाँ रखी हैं, इंसानों में किस तरह से ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो हमें अगर वही एक लेसन याद रह जाए जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था, तो मेरा ख्याल है कि आप इंशाअल्लाह जब मिलजुल के बर्ड्स को ही अपनी आंखों के सामने रखें, उनकी लाइफ के सामने रखें, उनसे सब बिहेव करेंगे। जब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफात की गुंजाइश होगी, अगर होगा नहीं तो सहाबा में भी आपस में इख्तलाफात हुआ करते थे, सहाबा में भी होते थे, हालांकि वो अल्लाह के नबी के कितने दोस्त थे, लेकिन अपने इख्तलाफात को कभी एक दूसरे की नाराज़गी का बाइस नहीं बने थे। तो आप भी सुन्नत को फॉलो करें, सहाबा के तरीके को फॉलो करें और नेचर से सीखें। नेचर हमें क्या सिखाती है, बस वही चीज़ हम फॉलो कर लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक चीज़ फॉलो करेंगे कुरान की, तो अल्लाह आपकी एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देगा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपको दीन के असूलों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको सबसे अहम चीज़, सबसे अहम किताब कुरान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरी आप सबसे बहुत एक आशा है, आपके लिए हमेशा दुआ करूँगी और आप मेरी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। It is now time to hear from the man we have all come to honor today. Sir, we will be grateful if you could share a few words with us. You guys started out, and then we went on and on, making us more and more emotional. Let's go along with that. Anyway, for starters, let me thank you very much for all your good wishes. At least they say that you can fool some of the people some of the time. You can't fool all the people all the time. But I guess I proved it wrong. And this evening I guess good enough to justify that. सबको बना दिया, great, better than I am. Anyway, let's go right away. Remember one thing, change is always better. That is how Allah subhanahu wa ta'ala ordained the universe to exist. It's constantly changing. बड़े से बारे में तो मुसलसल तब्दीली आ रही है पूरी। If you take a view from that, even organizations prosper and progress with change. Otherwise, अगर आप स्टेटस को नुकसान देखना चाहते हैं तो भारत केंद्र वीजा गवर्नमेंट है, पाकिस्तान को देख लें। We are facing whatever we are facing because we have a couple of fixed spaces that we see one or the other. Our Union culture, that is what destroys organizations. Whenever this stage of course took a little too long, but I guess, rather I'm sure that this change will make a whole lot of difference for this group, and I'd love to see that. I've actually got attached to otherwise. You
guys talk about a lot of things, but it's really something, man, I was a totally different human being if I go back to 1970. And then one day something happened. And what I'm going to tell you, you may not like believe it. You ever heard of out-of-body experience? I lived through that. And how I lived through that was I was sitting up there and my phone was on the bed, but there is suddenly much noise. I started breathing problems, she thought there was some yaar, तुझे हमारा एक बात है ना कि जब भ्रूण निकल रही हो सूर्य यासीन पढ़ते तो मेरी माँ ने ढेर कराई सूर्य यासीन पढ़ और मैंने बाहर बैठे हुए कोने में छत के ऊपर सॉफ्ट everything happened. My sister's crying, my mother's beside Surah Yasin, screaming at my sister, "Kya wo phone karo?" It lasted some time and it finished. And that gave me a whole lot of reasons to do what I thought I should have done. That's what I'll take along with me. Whatever went after that, I'd rather not share that with you. It's different. But know one thing, we are here in the schools, so I keep telling you, that जो आप करने आए हुए हैं, पैगम्बरी पेश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी नौ इंसान को तालीम देने के लिए पैगम्बर भेजे रसूल भेजे। और जब ये पैगम्बरी पेशा है तो अगर आप इसको दिल जमी से करेंगे, इताअत अदा करेंगे तो आप सोचो कितना लगेगा। और अल्लाह का निज़ाम देखें कि वो आपकी ज़िंदगी भर की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, आपको बेआशा अजर भी दे रहा है। हो सकते कि आप वो करें जिसके लिए आप बेरोज़गार। That's precisely what I've been asking you during that conversation. 7 years that I've been with you. कि जो भी करोगे अजर आपको मिलेगा। If nothing else, वो अजर एक है जिसके लिए I guess we all should continue to work on. We started off from somewhere, we had a lot of change I guess, but I go through a list in these 11 years, about over 100 teachers have left the school. Out of the 100 or so, most of them I myself we had a decision for it. The team that I have right now, I guess you have crystallized it. The form that you are in today, the school should actually benefit from whatever form that they find you in. When I wrote down a couple of points, I'm going to randomly what does this point we cut off. Because typically you deal with boys, young boys, adolescents, and whatever you want to call it. Or believe in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained the human being to produce more than 150%. Provided you know how to do it, you can make them do it. Because if you ask for less, then you have 150% नहीं मांगते तो आपको तकरीबन 110% दे देगा। आप 100 मांगोगे तो आप 80% देगा। और ज़्यादा स्मार्ट होगा तो 50 में चला देगा। और साथ ऐसी कहानी हम सुनाएगा तो शायद आप दूसरे को बैठ करो। So when you're dealing with boys, the way somebody already said कि मोहब्बत करने का अंदाज दिल पे पत्थर रखे। और वो जो मोहब्बत है आपकी, वो सुधार करता है। और वो आपको सीखना पड़ेगा। That has to be done. We are dealing with human beings. We are dealing with adolescents. We are dealing with boys who come from different status of society, they've got different background, they've got different family situations, circumstances, etc. उनको handle करना आसान नहीं है. So where you're going to master it and do it even better. And also, don't forget the fact that the learning is a two-way traffic. When you're teaching a classroom, a good teacher is the one who's learning from students who are learning. If you're good teaching each other, आप उस्ताद के रूप में खड़े हो कर स्टूडेंट घर में बैठे
teaching about some time. It's a two-way traffic. While you're teaching him, he's teaching you. If you care to learn. And a teacher who learns in the classes of the schools will always be a wonderful teacher. Because अगला जब आपको बताएगा कि और पढ़ना है. If you learn good structure. बाकी मैं सिकंदर साहब जी करूँगा मैं काफ़ी देर पीछे पड़ेंगे जब किताब लिखनी आगे मुझे अभी भी चाहिए क्या था भाई जिस पूरी किताब लिख दी तो ताला डाला है तेरे आएगा मेरे घर पे आ जाए because what all I have in here ताले डालने के बाद कर देगा anyway फिर ऐसे थोड़ा शौक पूरा कर दिया But as far as DDU all is concerned, Radha and Navika, guys, very pampered kids. Okay. The guys, pampered kids, look after them. They'll take you seeing places if you're in trouble. कमाल लोग हैं लेकिन इनसे कमाल निकालना पड़ेगा वरना सिर्फ जमाल का काम करेगा वो आपको निकालना पड़ेगा and then you see और and I mean in our open kids as far as Radha is concerned, I already told you that our column goes 2-3 decades मैं जब इसका बाबा नहीं था और ये भी काफी छोटा था when we first met and we didn't know that we were going to keep meeting and then at this stage of life we would meet all over again but then that's what this faith and destiny that you are able to meet with meet. So here's an organization that you're going to be taking over and have all faith in you and of course Allah subhanahu wa ta'ala that you're going to take better care of it than what I did. At any stage is something that I could give credible review. And of course, if you see first and for the current year, get back to me. I tell you, seeing the guy next to because first then you got to see what happens. So look out this organization, they look out back at you. The way I said, they're pampered kids, my fault. But don't take it pampered. Decent and good vocabulary. Look out of them. I wish you all of you the best of luck. My wife has already expressed very much to that. And the other thing is that you can come out. अभी हर शरीफ आदमी बीवी से नहीं डरता, right? So look at yourself, look at the food. And whatever good you do, you will get rewarded for it. And once again, thank you ever so much. और मैं in life में वैसे मैं जिंदगी में I think अभी तक मैं तकरीबन 80-90 तो फिर मैं ले चुका हूँ in different capacities. For example, I worked for 13 in the private sector. And what I come to believe there was कि दो जॉब बहुत चुनते हैं. एक कोर्ट में और दूसरा फिर so don't get carried away. Anyway, thank you very much once again. Look out yourselves, be good. Don't do that I will do. And there is nothing much that I will do anyway. So see you all. Godspeed. Look out yourselves. And Allah bless you all. Thank you, sir.